آج جو منظر میرے سامنے تھا اسے دیکھ کر میں بڑی حیران تھی۔ وہ آدمی اس بکری کو اپنے گلے سے لگائے بیٹھا تھا اور بکری کے آس پاس لوگوں کا جمع غفیر تھا۔ میں اس گاؤں کی دائی تھی اور میں نے اپنی آدھی سے زیادہ عمر عورتوں کی ڈلیوری کراتے گزار دی تھی۔ سب لوگ مجھ پر بڑا بھروسہ کرتے تھے، لیکن جب مولوی مشتاق میرے پاس آئے تو میں حیران رہ گئی اور کہنے لگے، اماں مجھے آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ میں نے کہا، تمہیں میری ضرورت کیسے پڑ گئی ہے؟ تمہارے گھر میں تو ایسا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ تمہاری بیوی تو بانجھ ہے۔ تو مولوی کہنے لگا، نہیں نہیں بڑی بی، مجھے آپ کی ضرورت تو ہے لیکن اپنی بیوی کے لیے نہیں، مجھے آپ کی ضرورت نیلو کے لیے ہے۔ میں نے کہا، نیلو کے ہاں ولادت ہونے والی ہے؟ تو اس نے کہا، جی ہاں، نیلو کے ہاں ولادت ہونے والی ہے، آپ جلدی سے آ جائیں، ایسا نہ ہو کہ کہیں دیر ہو جائے۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ یہ کام کوئی اتنا مشکل تو تھا نہیں، ایک بکری کا بچہ ہی پیدا کرنا تھا۔ مولوی اپنی بکری سے بڑی محبت کرتا تھا، اس لیے اس نے اس کا نام پیار سے نیلو رکھا ہوا تھا۔ وہ اس بکری کے پیچھے پاگل ہوا جا رہا تھا، وہ اس کا بڑا خیال رکھتا تھا، اس پر جان دیتا تھا، سردیوں میں اس کے گرم کپڑے بنایا کرتا اور اس کے لیے اس نے ایک الگ سے کمرہ بھی بنا رکھا تھا۔ جب بستی والوں کو پتا چلا کہ مولوی مشتاق کی جان اس بکری میں ہے اور یہ اس سے بڑی محبت کرتا ہے تو وہ کہتا تھا کہ جب سے بکری کو لے کر آیا ہوں تب سے تو میری زندگی ہی بدل گئی ہے۔ دوستو، بکری تھی بھی بڑی خوبصورت، سفید رنگ اور لمبے قد کی مالک تھی۔ ایسی بکری اس نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اس لیے اس بکری کا وہ بڑا خیال رکھتا تھا۔ میں بکری کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے پتا تھا کہ میرا زیادہ کام تو ہے نہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھوں نے ایسا ہولناک منظر دیکھا کہ میرے قدموں تلے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے مولوی سے کہا، یہ کیا معاملہ ہے؟ مشتاق پتا کر، یہ کس حرامی کی حرکت ہے؟ وہ خود بڑا پریشان رہ گیا، اس کے منہ سے تو کوئی بات ہی نہیں نکل رہی تھی، اسے یہ سب دیکھنے کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ جب پتا کیا گیا کہ یہ کس کی کارستانی ہے تو میرے قدموں سے زمین نکل گئی اور آسمان پھٹ گیا، کیونکہ مولوی مشتاق کبھی بھی خود سے نظریں نہیں ملا سکتا تھا، کیونکہ یہ کام صرف ایک کا نہیں، بلکہ لوگ کہتے ہیں ایک ماں کے جذبات صرف عورت میں نہیں ہوتے، لیکن کچھ مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اولاد پیدا کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ مولوی مشتاق بھی ایسے ہی مردوں میں سے تھا، وہ میرے ہی ہاتھوں پر پیدا ہوا تھا۔ اس کی ماں بڑی نیک اور شریف عورت تھی، لیکن وہ کئی سال پہلے اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس کی ایک بیوی تھی جو اچھی عورت معلوم ہوتی تھی، وہ نہ کسی سے زیادہ بات کرتی تھی اور نہ ہی محلے میں اس کا کہیں آنا جانا تھا، کیونکہ وہ بانجھ تھی اور لوگوں کی باتوں سے ڈرتی تھی کہ لوگ مجھے باتیں سنائیں گے۔ اکثر وہ میرے پاس آتی اور میں اسے کچھ دوائی دیتی، کیونکہ میں گاؤں کی دائی تھی۔ میں نے اس کی بیوی سے کہا، تیرے ہاں امید نہیں ہونے والی، تو شہر جا کر کسی اچھے ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروا لے۔ آج کل شہروں میں بڑے بڑے ڈاکٹروں نے کئی طریقے نکال لیے ہیں جس سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگی، آپ کو تو پتا ہے ہم غریب لوگ ہیں اور مولوی مشتاق کبھی مجھے شہر نہیں لے کر جائے گا، ہمارے پاس اتنے پیسے ہے بھی کہاں کہ ہم اپنا علاج کرا سکیں۔ جب وہ بدبخت کہیں سے ایک بکری کا بچہ لے آیا، یہ ایک چھوٹی سی بکری تھی، اس کو وہ اٹھا کر لایا تھا۔ جیسے اس کے ہاں اولاد پیدا ہوئی تو اس نے اس بچے کا نام نیلو رکھ دیا۔ پھر وہ پورا دن اس بکری کی دیکھ بھال کرتا تھا، اسے اس طرح پالتا تھا جیسے کوئی انسان اپنی اولاد کو پالتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بکری بڑی ہوتی گئی، اب وہ دودھ بھی دینے لگی تھی۔ میں بوڑھی عورت تھی، میں نے اسے کہا کہ پاؤ بھر دودھ میرے لیے بھی رکھ لیا کرو۔ وہ ایسا ہی کرتا تھا، لیکن آج اس کی حالت دیکھ کر میرا کلیجہ میرے منہ کو آ رہا تھا۔ بیچارہ ایسے سر پکڑ کر بیٹھا تھا جیسے ہی اس کی اپنی بیٹی یا بیوی کے ساتھ ہوا ہو۔ جب صبح صبح میری آنکھ کھلی تو دروازے پر کھڑا دستک دے رہا تھا، کہنے لگا، میری بکری کے ہاں بچہ ہونے والا ہے۔ میں نے کہا، تیری بکری تو اکیلی رہتی ہے؟ تو کہنے لگا، یہ مجھے نہیں پتا خالہ، آپ میرے ساتھ ابھی چلیں،
اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ جب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو مجھے کوئی اور ہی معاملہ معلوم ہو رہا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ اس کی بیوی تو بانجھ ہے، وہ تو کبھی بچہ پیدا ہی نہیں کر سکتی، اور وہ اپنے شوہر کو پسند بھی نہیں کرتی تھی کیونکہ اس کے ماں باپ نے اس کی زبردستی شادی کروائی تھی۔ وہ لڑکی تو بڑی اچھی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس نے میرے گھر بھی آنا جانا کم کر دیا کیونکہ یہ گاؤں تھا، اور دوستو آپ تو جانتے ہی ہیں کہ گاؤں میں عورت کا بانجھ ہونا کتنا بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ مجھے اپنے ساتھ لے کر وہ کمرے میں داخل ہوا۔ یہ کمرہ اس نے خاص نیلو کے لیے بنا رکھا تھا۔ وہ وہاں پر بیٹھی کچھ بیمار سی دکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، دیکھ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ جانوروں کے ڈاکٹر کا کام ہے۔ وہ یہ گاؤں چھوڑ کر چلا گیا ہے، اس لیے چل میں تیری تھوڑی سی مدد تو کر ہی دیتی ہوں۔ میں وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا حقہ بھی اپنے پاس رکھ لیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آج میری زندگی کا عجیب و غریب دن ہونے والا ہے، ایسا منحوس دن چڑھا ہے اور ایسا معاملہ پیش آنے والا ہے جسے دیکھ کر میری روح تک کانپ جائے گی۔ تو میں نے مولوی سے کہا، تو باہر چلا جا، اور میں نے حقہ پینا شروع کر دیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد مجھے اپنے آس پاس کسی نومولود بچے کی رونے کی آوازیں آئیں تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ عورتوں کے بچے پیدا کراتے کراتے کہیں میرا دماغ تو نہیں فارغ ہو گیا؟ یہ تو بکری ہے، لیکن یہاں بچے کی رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ لیکن جب میں نے آنکھیں مل کر ایک طرف دیکھا، میری تو روح ہی کانپ گئی۔ نیلو کی حالت بڑی خراب تھی اور اس کے پاس ہی ایک نومولود انسانی بچہ پڑا تھا جو رو رہا تھا۔ میں نے نیلو کو چیک کیا تو اس کا پیٹ پہلے سے چھوٹا لگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ میں نے کہا، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ لیکن وہ بچہ ایسے ہی گھاس پر پڑا تھا۔ میں نے جلدی جلدی اسے اٹھایا اور اپنی چادر میں لپیٹ لیا۔ میں جب وہ بچہ اٹھا کر کمرے سے باہر نکلی تو سامنے مولوی مشتاق کی بیوی اور گاؤں کی ایک عورت کھڑی تھی۔ شاید وہ دودھ لینے کے لیے آئی تھی، لیکن جب اس نے یہ ہولناک منظر دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ اس کی بیوی نے کہا، یہ کیا بات ہے اماں، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے کہا، کیا پاگل ہو گئی ہے؟ دیکھ نہیں رہی یہ بچہ ہے، یہ ایک انسانی بچہ ہے۔ اس نے کہا، ماں یہ بیٹا کس کا ہے؟ یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تم تو اندر نیلو کے پاس گئی تھی نا، اس کی طبیعت خراب تھی۔ میں نے کہا، اب میں تم لوگوں کو کیا سمجھاؤں کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے؟ مجھے تو خود نہیں معلوم، لیکن جلدی جلدی اس کو سنبھالو، کہیں یہ بیمار نہ ہو جائے۔ مولوی مشتاق کی بیوی نے بڑھ کر بچہ مجھ سے لے لیا اور کہنے لگی، میں اس کا خیال کرتی ہوں، اور وہ بڑی جلدی جلدی بچے کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ جب مولوی مشتاق نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیا تو اس نے کہا کہ نیلو کیسی ہے؟ میں نے کہا، نیلو تو ٹھیک ہے، لیکن اور معاملات بڑے خراب ہیں، اتنے زیادہ خراب ہیں کہ میں بھی ٹھیک نہیں کر سکتی۔ تو مولوی مشتاق کہنے لگا، خالہ کیا مطلب آپ کا؟ تو میں نے اسے بتایا، تیری بکری نے ایک انسانی بچے کو جنم دیا ہے۔ اس نے کہا، اچھا یہ کیسے؟ ایک بکری بھی بھلا کیا انسانی بچہ پیدا کر سکتی ہے؟ یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، انسانی بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اماں میں آپ کو نیند سے جگا کے لایا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہوا میں باتیں کرو اور لمبی لمبی چھوڑو۔ اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو دوبارہ جا کے سو جاؤ، لیکن یہ کیسا مذاق کر رہی ہو؟ تو دائی بولی، مذاق نہیں، جا کے اندر اپنی بیوی کے پاس جا کے دیکھ لے، تیری بیوی کی گود میں جو بچہ ہے وہ اس نیلو نے ہی دیا ہے۔ وہ فوراً اندر بھاگا گیا تو میں بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ اس کی بیوی نے اس بچے کو کپڑے میں لپیٹ رکھا تھا اور دوسری عورت سے کہا تھا کہ جا کر اپنے گھر سے بچے کا فیڈر اور دودھ لے کر آئے، کیونکہ اس عورت کے ہاں بھی ابھی بچہ پیدا ہی ہوا تھا۔ وہ عورت بھاگ کر فیڈر اور دودھ لے آئی۔ دوستو دودھ پی کر بچہ سکون سے چپ کر گیا، لیکن اب اس گھر والوں کا سکون برباد ہونے والا تھا۔ مولوی مشتاق تو زمین پر بیٹھ گیا اور اپنا سر زور زور سے پیٹنے لگا۔ ہائے اللہ، یہ کون سا زمانہ آ گیا ہے؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔
आप लोगों ने मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेला? हमने कहा, हमने तेरे साथ क्या खेल खेलना था, तू बता, ये सब क्या है? ये तेरी बकरी थी, तेरे पास रहती थी, तू ही इसे चारा डालता था और इसका हर तरह से ख्याल रखता था, और तेरी बकरी के यहाँ विलादत होने वाली थी। अब तू बता कि छोटा सा मेमना आने की बजाय ये इंसानी बच्चा कहाँ से आ गया? दोस्तों, मौलवी की बीवी बच्चे को बड़े प्यार से संभाल रही थी। वो ना तो कुछ बोल रही थी और ना ही कुछ कह रही थी। हम सब बड़े हैरान थे, उसको भी हैरान होना चाहिए था, लेकिन वो बिल्कुल पुरसुकून नजर आ रही थी। हम ये सोच रहे थे, आखिर ये सब कैसे हो गया? ये तो क़यामत की निशानी थी। जब मौलवी की बीवी से लोग पूछते कि तेरे यहाँ बच्चा नहीं होता, क्या तुझे बच्चों का शौक नहीं है? तो वो कहती, अगर बच्चे नहीं हैं तो मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन अब वो औरत इस बच्चे को ऐसे पकड़ कर बैठी थी जैसे ये खुद का ही बच्चा हो, और उसको अपने से दूर नहीं करना चाहती थी। तो दाई बोली, अरे कुछ बोल, तू खामोश क्यों बैठी है? उसने कहा, मैं क्या बोलूं, मेरे बोलने ना बोलने से क्या होगा? यही इस बकरी को उठाकर लाए थे और पूरा दिन इसके आसपास फिरते रहते थे। मुझे नहीं पता मैं किस पे शक करूं। दोस्तों, मौलवी मुश्ताक ने पास पड़ा गिलास उठाकर जमीन पर दे मारा। उसने कहा, बदजात, तू मुझ पे शक कर रही है, तू अपने शौहर पे शक कर रही है, लेकिन आप ही बताएं मौलवी साहब, ये बच्चा कैसे पैदा हो गया? ये तो कुदरत के खिलाफ है। मौलवी कहने लगा, अब ये सोचो कि इस बच्चे का क्या करेंगे। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती तो मौलवी की बीवी कहने लगी, बच्चे को मेरे पास रहने दें, अल्लाह ने मुझे औलाद दी है और मैं इसे अपनी औलाद समझकर ही पाल लूंगी। मौलवी की बीवी कहने लगी, हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं। 10 साल में तो लोगों के 10 बच्चे भी हो जाते हैं। ना तो मुझे किसी डॉक्टर के पास लेकर गए और ना मुझ पर कभी ध्यान दिया, ना मेरा इलाज कराया। तुम तो हर वक्त इस बकरी के पीछे ही पड़े रहते थे। अब अल्लाह ने करम किया है तो मैं इस बच्चे को जरूर पालूंगी। और वो बोली कि मेरी बहन नाज पर अल्लाह ने ऐसा करम किया है कि एक साथ ही उसे 3 बेटियां पैदा हुई थी, और उसके बाद अल्लाह ने उसे 2 बेटे और दिए। वो हमें अपना बच्चा देने को तैयार थी। उसका आदमी शहर में मेहनत मजदूरी करता है, वो 5 बच्चे को कैसे पालता? फिर मेरी बहन की अपनी भी औलाद थी, और मेरी बात मानो, हम इस बच्चे को अपना ही बच्चा समझ लेते हैं और हम ये कहेंगे कि ये बच्चा मेरी बहन ने हमें दिया है। अब तुम खुद ही सोचो कि मामला इतना बिगड़ गया है कि ये बात पूरे गांव में मशहूर हो जाएगी और लोग तरह तरह की बातें सुनाएंगे और हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। तो मौलवी की बीवी बोली, मैंने जो मांगा था वो मुझे मिल गया है। तो दाई बोली, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। मैं तो अपने घर चली। मौलवी मुश्ताक की माँ मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी, इसलिए वो मुझे खाला कहता था और कभी तो अम्मा भी कहता था। जब शाम हुई तो मौलवी मुश्ताक हड़बड़ाता हुआ दोबारा मेरे घर पर आया। वो बड़ा परेशान था और कहने लगा, खाला बहुत बुरी खबर है। मैंने कहा, अबे सुना, क्या बात है? तो कहने लगा कि खाला, नीलो इस दुनिया से चली गई है, अभी अभी दफना के आया हूँ। मैंने कहा, मुझे बड़ा अफसोस है। वो फिर फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, मेरी बकरी दुनिया से चली गई, मेरे साथ ये अजीब मामला पेश आ गया, पूरे गाँव में अब ये बात फैल जाएगी तो मेरा क्या बनेगा? समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन अगर भागूं तो क्या इस बच्चे को लेके भागूं? तो मैंने कहा, देख, इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं। तेरी बीवी के यहाँ औलाद तो पहले ही नहीं है, वो इस बच्चे को पाल लेगी और उसका भी वक्त गुजर जाएगा। तुम लोगों की आधी जिंदगी तो गुजर ही गई है, बच्चे तो हुए नहीं हैं। अब अल्लाह ने शायद तुम्हें इसी तरह से बच्चा देना था। उसने कहा, नहीं, ये सब मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। मुझे पता लगाना है कि ये किसकी कारस्तानी है, किसने मेरी बकरी के साथ ये घिनौना काम किया है। जिसने भी ये गुनाह किया है उसको उसके गुनाह की जरूर सजा मिलेगी। तो दाई बोली, मुझे ऐसा लगता है ये बच्चा तेरी बीवी का ही है, शायद ये तुझसे नहीं है। उसने कहा, क्या मतलब खाला, आप ये बात हवा में नहीं कर सकती, आपके पास सबूत होना चाहिए। तो मैंने कहा, सबूत तो यही है कि वो इस बच्चे से बड़ी मोहब्बत कर रही है, वो इसे गले से लगा के बैठी है, वो इसे छोड़ ही नहीं रही। ऐसी मोहब्बत तो बच्चे की सगी माँ ही करती है।
जिसने बच्चे को खुद से जन्म दिया होता है, माँ की मोहब्बत उस वक्त और भी बढ़ जाती है जब बच्चा उसकी गोद में आता है। ए मुश्ताक, तुझे ये अजीब नहीं लगता? ना वो कुछ बोल रही थी और ना ही कुछ कह रही थी, बस इस बच्चे का ख्याल रख रही थी। मौलवी मुश्ताक कहने लगा, पता नहीं खाला, मुझे नहीं पता उसका रवैया अजीब था या नहीं। अगर वो माँ बनने वाली थी तो मुझे पता क्यों नहीं चला? तो मैंने कहा, तेरी बीवी कम वजूद की मालिक है। अरे वो माँ बनने वाली होती तो तुझे क्या, तेरे पूरे खानदान को भी पता न चले। पहले तो पिछले दिनों तू तबलीग पर गया हुआ था और तुझे याद है ना कि तू परसों ही वापस आया है। तो मौलवी मुश्ताक सोचने लगा और उसने कहा, हाँ बात तो सच है, मैं अल्लाह के रास्ते पर गया हुआ था और परसों ही वापस लौटा हूँ। तो मैंने कहा, मेरा तजर्बा भी यही है, ये बच्चा एक दिन का नहीं है, ये बच्चा कम से कम भी 4-5 दिन का है। तो मौलवी मुश्ताक ने कहा, अगर ये सब कुछ मेरी बीवी का किया धरा है तो नीलो को मारने की क्या जरूरत थी? उसने उसे क्यों मार डाला? तो मैंने कहा, उसने उसे इसलिए मारा कि ये कहानी बाहर न निकल सके और तू नीलो को छोड़ दे। अब वो इस दुनिया से चली गई है, लेकिन तू पता कर ये बच्चा तेरी बीवी का है या नहीं। तो मैंने कहा, खाला मैं कैसे पता कर सकता हूँ? उसने कहा, तू पता कर या ना कर, मैं पता लगा कर ही रहूंगी, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे यकीन था कि तुम्हारी बीवी झूठ बोल रही थी, ये बच्चा उसी का था जो कि उसने किसी और मर्द के साथ बदकारी करके पैदा किया था और फिर उसे यहाँ रखकर कहानी बना रही थी। क्योंकि कभी भी ऐसा होता है कि औरत एक मर्द से औलाद नहीं होती तो दूसरे मर्द से शादी करे तो औलाद हो जाती है। मर्द के मामले में भी तो ऐसे ही होता है, एक बीवी से बच्चे नहीं होते तो मर्द दूसरी बीवी से शादी कर लेता है। हमारे माशरे में तो यही होता है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। तो औरतों की चाल देखकर ही समझ जाती हूँ। मैंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी इसी सब कामों में गुजारी है। मैं तो पेड़ देखकर बता सकती हूँ कि कौन सा महीना चल रहा है। मैं मानी तानी दाई हूँ। वो दाई मौलवी की बीवी के पास जाकर बैठ गई तो उसने कहा, तुझे बच्चों का तजर्बा नहीं तो मैं तेरी मदद करने आई हूँ। बच्चा ठीक तो है ना? तो उसने कहा, क्यों नहीं ठीक होगा। वो कुछ बोलते बोलते रुक गई। वो क्या कहना चाहती थी कि अपनी माँ के पास बच्चा है तो ठीक ही होगा। मैंने उसे कहा, थोड़ी देर के लिए बच्चा मुझे दे दे और जाकर मेरे लिए एक चाय का कप तो बना ला। मैं देखना चाहती थी कि क्या इसकी चाल में कोई फर्क है। दूसरी तरफ मौलवी मुश्ताक बाहर निकल आया। वो भी ये पता करना चाहता था कि आखिर ये मामला कैसे हुआ। आसपास के मोहल्ले के लोगों से वो पूछगछ कर रहा था। लोगों से पूछ रहा था कि मेरी गैर मौजूदगी में क्या किसी मर्द को मेरे घर में आते जाते देखा था। वो जिससे भी बात कर रहा था लोग इसको बदले में और भी बातें सुना रहे थे, लेकिन उसने ये जानने की ठान ली थी कि आखिर मामला क्या है। इधर मैं अपनी तफ्तीश कर रही थी, लेकिन मेरा अंदाजा गलत निकला। मौलवी की बीवी को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने जल्दी कोई बच्चा पैदा किया हो। वो बिल्कुल ठीक ठाक फिर रही थी, लेकिन ये बच्चा फिर आया कहाँ से? लेकिन दोस्तों, कुदरत ऐसे निराले रंग दिखाती है, ऐसे मामलात नजर आते हैं कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। ये कुदरत का गुस्सा जाहिर करने के तरीके होते हैं। इंसान इन चीजों को नहीं समझ पाता। ये सब कुछ झूठ है या कहानी है, लेकिन होने को क्या नहीं हो सकता। मुझे एक औरत के बारे में पता चला कि उसने एक ऐसा बच्चा पैदा किया जिसे देखकर सब लोग चीखें मारते हुए वहाँ से भाग गए, क्योंकि वो बच्चा था इस किस्म का खौफनाक। उसने उस बच्चे को उठाकर उसकी माँ की गोद में रखा था तो उसकी माँ के हाथ भी कांप रहे थे और वो बुरी तरह से रो रही थी। सब लोग कहते थे कि इसे ये सजा मिली है क्योंकि उसने चारपाई पर पड़ी, अपनी सास की खिदमत नहीं की। वो उसको हमेशा गालियां देती थी और उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करती थी। अपनी सास की बददुआ से उसके यहाँ ये खतरनाक बच्चा पैदा हुआ है। खैर, गांव के लोग अब ये जान चुके थे कि मौलवी की बीवी के पास एक बच्चा है और वो बिल्कुल ठीक ठाक है और वो बड़े अच्छे तरीके से उसका ख्याल रख रही है। मैं अपने घर वापस आ गई। काफी दिन गुजर गए। एक औरत मुझे बुलाने के लिए आई और वो कहने लगी कि खाला, शकीला की बेटी है ना, उसकी तबीयत खराब हो गई है और उसकी डिलीवरी होने वाली है। मैंने कहा, हाँ हाँ मैं आती हूँ।
मैं उन लोगों की मदद करने के लिए उनके साथ चली गई। शायद उस औरत के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला था, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया था। लेकिन मुझे ये पता चल गया था कि किसकी बात हो रही है, क्योंकि शकीला को मैं अच्छी तरह जानती थी। उसकी एक जवान और खूबसूरत बेटी थी जो पूरे गांव में अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर थी। उसका नाम शायद फातिमा था। लड़की बड़ी प्यारी थी। जब मैं घर में दाखिल हुई तो फातिमा की हालत बड़ी खराब लग रही थी। वो बिस्तर पर पड़ी थी और उसे बड़ा तेज बुखार था। मैंने पूछा कि क्या मामला है, तो उसकी माँ ने कहा ये अपने मामू के घर गई थी और 4 दिन पहले वापस आई है। तब से इसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर रखा है, ना कुछ खाती है और ना पीती है। इसकी हालत बड़ी अजीब हो रही है। अब इसको इतना तेज बुखार हो गया है कि बुखार उतर ही नहीं रहा। मैंने फातिमा की तरफ देखा तो उसका चेहरा देखकर मैं समझ गई कि मामला कुछ और है। मैंने उन लोगों से कहा आप लोग जरा बाहर चले जाओ, जवान लड़की है, तुम लोगों के सामने मैं ऐसी बातें पूछूंगी तो मुनासिब नहीं लगेगा। वो सब लोग बाहर चले गए तो मैं कहने लगी देख बेटी, मैंने जब से तेरी हालत देखी है मैं समझ गई हूँ कि तेरा क्या मामला है। तू मुझे ये बता तेरी औलाद कहाँ है। तो वो लड़की कहने लगी मैंने अपना बेटा मौलवी की बीवी को दे दिया है। तो मैंने पूछा वो तेरी क्या लगती है। तो कहने लगी वो मेरी बचपन की सहेली है। मैंने कहा इस बच्चे का बाप कौन था। तो फातिमा ने सर झुका लिया। उसने कहा बच्चे का जो भी बाप था उसके साथ मेरा नाजायज रिश्ता था। वो पीछे कारखाना बन रहा है, वो उधर का अफसर था। वो बड़ा खूबसूरत आदमी था। यहाँ से गए हुए उसे 10 महीने होने वाले हैं। वो तो चला गया लेकिन मैं उसके इश्क में पागल हो गई थी। ये बात मैंने अपनी सहेली यानी मौलवी की बीवी को बताई थी कि मेरे यहाँ औलाद होने वाली है। जब मेरे यहाँ औलाद होने वाली थी और कुछ महीने ऊपर हुए तो मैं बहाना करके अपने मामू के घर चली गई। आपको पता है कि मेरे मामू अंधे हैं, उनकी एक बेटी है। ये सब कुछ छुपाना बड़ा आसान था। वहाँ रहकर ही मैंने बच्चे की पैदाइश की और उसके बाद मैंने वो बच्चा मौलवी की बीवी यानी अपनी सहेली को दे दिया और किसी को कानो कान भी खबर नहीं हुई। और वो कहने लगी कि मौलवी की बीवी मेरी दोस्ती नहीं बल्कि मैं उससे अपनी बहनों से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। अब जो होना था सो हो गया। मैं सिर्फ इसलिए खुश हूँ कि इस मासूम जान को एक माँ मिल गई है और तेरे घर वालों के भी इज्जत सलामत रहेगी, वरना ये बात मैं सबको बता देती। मैंने बाहर जाके कह दिया तबीयत खराब है, कुछ दिन आराम करेगी तो ये ठीक हो जाएगी। इधर मैंने मौलवी मुश्ताक को ये बात बताई कि ये बच्चा जैसी भी दुनिया में आया हो लेकिन अब ये तेरी औलाद है। तूने इसका जिक्र किसी से नहीं करना। शायद अल्लाह ने तुझे एक इम्तिहान के लिए चुना है। अब तू इसमें सुरखरू हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है। अब तू इसे अपना ही बच्चा समझकर पाल। दोस्तों, उस बच्चे के आने के बाद मौलवी मुश्ताक के हालात बड़े बेहतर हो गए। उसके घर में दौलत की रेल पेल हो गई और उसकी बीवी भी बड़ी खुश हो गई। और फातिमा का राज कभी किसी को पता नहीं चला कि उसने नादानी में कितना बड़ा कदम उठाया था। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपको एक बोलने वाले तोते और एक ऐसी बदकार औरत का किस्सा सुनाएंगे जिसकी शक्ल गधी में तब्दील हो गई। दोस्तों, आखिर उस औरत ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी उसको इतनी भयानक सजा मिली। ये वाकया सुनकर आप हैरानों परेशान रह जाएंगे और इस वाकये से आपको एक सबक भी मिलेगा। दोस्तों, शाम के एक गांव में एक खूबसूरत नेक नौजवान रहा करता था। उसकी नेक नामी और खूबसूरती की हर कोई तारीफें करता था। उसके माँ बाप बचपन ही में मर चुके थे। मस्जिद के मौलवी साहब ने उसकी तालीम और तरबियत की थी। जब वो जवान हो गया, अपना कमाने और खाने लगा, तो उसने अपने घर में एक छोटा सा तोता पाल लिया। वो नौजवान अपने घर में कुरान पाक की तिलावत किया करता था और वो तोता भी उसके पास ही रहता था। वो नौजवान अपने घर में कुरान पाक की तिलावत करता था तो वो तोता भी उसके पास ही होता था। दोस्तों, वो तोता थोड़ा थोड़ा बोला करता था। अल्लाह वाले नौजवान ने उस तोते को यही सिखाया हुआ था कि हमेशा सच बोलो। सच बोलने वालों को अल्लाह पाक पसंद करते हैं। दोस्तों, उस नौजवान के घर के पास एक तवाइफ का कोठा था। वो तवाइफ बहुत ही खूबसूरत औरत थी। उस औरत की मुलाजमा ने एक दिन उस तवाइफ से कहा, बाजी, आपके हुस्न का पूरा गांव दीवाना है।
मगर एक नौजवान ऐसा है जिसने कभी आपको नजर उठाकर भी नहीं देखा। वो नौजवान बड़ा नेक और शरीफ है, मस्जिद से सीधा घर आता है और घर से मस्जिद चला जाता है। वो बदकार औरत कहने लगी, ये कैसे हो सकता है कि वो कौन बड़ा आबदो ज़ाहद है जो मेरी खूबसूरती को देखकर मुझे एक नजर देखता भी नहीं। तो उसकी मुलाजमा कहने लगी, आप चाहें तो आजमा कर देख लें। तो तवाइफ ने कहा, ठीक है। दोस्तों उस तवाइफ ने अपना भेष बदला और एक शरीफ लड़की के कपड़े पहनकर वो मस्जिद के दरवाजे के आगे जाकर खड़ी हो गई, ताकि जब भी वो लड़का आए तो उसको किसी न किसी बहाने से बुला सके और बहका सके। वो लड़का जब भी नमाज पढ़ने आता कभी भी नजर उठाकर उसकी तरफ नहीं देखता था। वो नजर झुकाकर मस्जिद में जाता और नजर झुकाकर सीधा मस्जिद से अपने घर की तरफ चला जाता था। दोस्तों इस तरह कई दिन गुजर गए, मगर उस लड़के ने उसको एक नजर उठाकर भी नहीं देखा। एक दिन वो तवाइफ बीमार पड़ गई तो उस नौजवान ने जब एक लड़की को यूं जमीन पर पड़े हुए देखा तो उसने पूछा कि ये लड़की कौन है। तो पास खड़े एक आदमी ने कहा, हम इस लड़की को नहीं जानते। दोस्तों क्योंकि तवाइफ ने अपना भेष बदला हुआ था तो लोगों ने कहा, ये किसी गरीब घर की मालूम होती है। इस अल्लाह वाले नौजवान ने लोगों से कहा कि इसको आप उठाएं और मेरे घर पहुंचा दें। दोस्तों लोगों ने उसे उठाकर उस नौजवान के घर पहुंचा दिया। लड़की ये देखकर बड़ी खुश हुई कि मेरा पहला वार तो कामयाब हो गया है। अब मैं इस नौजवान को, इस अल्लाह ताला के बंदे को आसानी से बहका सकती हूँ और रात की तन्हाई में बहकाना और भी आसान हो जाएगा। दोस्तों वो लड़का इशा की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में गया और वो औरत इसका इंतजार कर रही थी। उस लड़के ने आकर पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है। तो तवाइफ औरत कमजोरी का बहाना करने लगी और उसकी आंखों में शैतानी झलक रही थी, साथ ही वो अपने हुस्न के जलवे भी दिखाने लगी। उस बदकार औरत ने हर तरह के तीर चलाए, मगर वो अल्लाह वाले नौजवान को अपने जाल में फंसाने में नाकाम हो गई और वो थक हार कर लेट गई और सोचने लगी कि अगर बूढ़ा भी होता तो वो भी मेरे पीछे आ जाता। ये पता नहीं किस मट्टी का बना हुआ है, मेरा कोई भी इशारा नहीं समझ पा रहा। दोस्तों इस अल्लाह वाले नौजवान ने उस लड़की से पूछा, आपका इस दुनिया में कौन है, आपके माँ बाप कहाँ हैं, आपका घर कहाँ है। उस तवाइफ ने कहा, पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है। और ये कहकर वो रोना शुरू हो गई। उस अल्लाह वाले नौजवान ने जब ये सुना तो उसको बड़ा दुख हुआ और वो उसको कहने लगा कि आप मेरे लिए गैर महरम हैं और आपका यहाँ मेरे साथ रहना ठीक नहीं है। दोस्तों उस बदकार औरत ने जब ये बात सुनी तो कहने लगी, मैं कहाँ हूँ। उस नौजवान ने कहा, आज रात आप यहाँ मेरे यहाँ ठहर सकती हैं, मगर सुबह आपको जाना होगा। ये सुनकर वो बदकार औरत कहने लगी कि मैं किसी तरह इससे गुनाह कराऊंगी, मगर फिर वो हर लिहाज से नाकाम रही। दोस्तों नौजवान ने अपने मस्जिद के मौलाना साहब से मशवरा किया कि एक गैर औरत मेरे घर पर रह रही है, मैं बड़ा परेशान हूँ, आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ। तो मौलाना साहब कहने लगे, अगर उसके आगे पीछे कोई नहीं है और वो गरीब और लावारिस है तो फिर तुम उससे निकाह कर लो। नौजवान हो, आखिर शादी तो करोगे ना। इस नौजवान ने वापस आकर उस तवाइफ औरत को बताया कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि मैं तुमसे निकाह कर लूं। दोस्तों ये सुनकर वो औरत बड़ी खौफजदा हो गई कि मेरा इरादा तो इससे निकाह करने का नहीं है, मैं तो इससे सिर्फ नाजायज ताल्लुक कायम करना चाहती हूँ, मैं यहाँ इसकी बीवी बनने नहीं आई। दोस्तों ये सोचकर उस बदकार औरत ने उस नौजवान से कहा, मुझे आप आज रात सोचने का टाइम दो, मैं सुबह आपको बता दूंगी। दोस्तों वो लड़की रात भर सोचती रही कि आखिर करूँ तो क्या करूँ। तो फिर उसने फैसला किया कि चलो झूठ मूठ ही सही, आखिर ये नौजवान तो मुझे मिले, जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं इसके घर से भाग जाऊंगी। दोस्तों सुबह होते ही उस औरत ने नौजवान को कहा, मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ, और कहने लगा कि मैं किसी बेसहारा का सहारा बनना चाहता हूँ, इस तरह तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाएगी। तो नौजवान ने मौलवी साहब को बुलाया और निकाह पढ़वा लिया। सब लोग इस नेक सीरत और खूबसूरत नौजवान की शादी से बड़े खुश थे कि उसने निकाह कर लिया है और किसी बेसहारा और गरीब लड़की को सहारा दिया है। दोस्तों वो नौजवान तो अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत करने वाला था
अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि उस औरत का उस नौजवान से दिल भर गया। तो वो अपने आप से कहने लगी कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? मैं वापस अपनी उसी दुनिया में जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं इस नौजवान के निकाह में हूँ और उसकी बीवी हूँ। दोस्तों, उस बदकार औरत ने अपनी मुलाजमा को पैगाम भिजवाया कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, कोई बंदोबस्त करो। मुलाजमा उसके पास आई और कहने लगी कि अब आप इस नौजवान की बीवी बन चुकी हैं, आप यहाँ से कैसे निकल सकती हैं? मैं इसकी खूबसूरती में इतनी पागल हो चुकी थी कि मैं किसी तरीके से अपना काम करवाना चाहती थी। ये तो मुझे देखता भी नहीं था, तो फिर और मैं क्या करती? मुझे मजबूरन इससे निकाह करना पड़ा। अब मुझे ये नौजवान पसंद नहीं है और मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ। दोस्तों, उसने मुलाजमा से कहा तो मुलाजमा आगे से कहने लगी कि आप ऐसा करें कि इससे तलाक ले लें। तो वो औरत कहती है, नहीं, मैं इससे तलाक नहीं ले सकती क्योंकि ये बहुत अच्छा इंसान है, ये मुझे कभी भी तलाक नहीं देगा। वो बदकार औरत बोली, मुझे इतना शरीफ इंसान नहीं चाहिए, क्यों ना मैं ऐसा करती हूँ कि इसको जान से मार देती हूँ। तब वो अपनी कोठे वाली जिंदगी को याद करने लगी, जहाँ हर रोज अमीर अमीर लोग उसके पास आया करते थे और उस पर हजारों दिनार निछावर करते थे। दोस्तों, उस तवाइफ ने अपनी मुलाजमा से कहा, मुझे इस नौजवान के साथ नहीं रहना, मुझे जहर ला कर दो, मैं इसको जहर देकर मार दूंगी। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद मुलाजमा ने उसको जहर लाकर दे दिया और जब रात को वो नौजवान घर आया तो वो बदकार औरत सज संवर कर उसके सामने आई और कहने लगी, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। जब वो उसके लिए खाना लेने गई तो उसने इस खाने में जहर मिला दिया। दोस्तों, वो नौजवान का तोता जो उस घर में रहता था वो ये सारा मंजर देख रहा था। तोते ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ। वो अल्लाह वाला नौजवान उसके पास आया और कहने लगा, आज तुम इतना क्यों चीख रहे हो? तो तोता बोला, बचाओ बचाओ। तोते की ये बात सुनकर वो नौजवान बड़ा हैरान हुआ। उसने खाना खाया और अपनी बीवी से कहने लगा, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, मुझे रात को तहज्जुद के वक्त उठा देना। जब आधी रात का वक्त हुआ, दोस्तों, जब आधी रात का वक्त हुआ तो उस नौजवान को पेट में तकलीफ होना शुरू हो गई। उसने अपनी बीवी से कहा, मेरे पेट में बड़ा दर्द है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पेट में कोई छुरियां चला रहा है। तो वो बदकार औरत कहने लगी, मुझे लगता है आपने कोई उल्टी सीधी चीज खा ली है। तो वो नौजवान कहने लगा, नहीं, मेरा वक्त करीब आ चुका है, मुझे लगता है मेरी मौत करीब है। तुम ऐसा करो, मौलवी साहब को बुला दो और उनसे कहो कि वो फौरन यहाँ आ जाएं। दोस्तों, उस औरत ने मौलवी साहब को नहीं बुलाया और उसका शोहर तड़प तड़प कर मर गया, मगर उस बदकार औरत को जरा भी रहम नहीं आया और उस नौजवान ने मरते वक्त कलमा शहादत की तिलावत की और उसकी जान निकल गई। वो तोता जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ। उस औरत ने उस तोते से कहा, चुप हो जाओ वरना मैं तेरा भी गला घोंट दूंगी। उसने अपनी मुलाजमा को पैगाम भेजा कि जल्दी से यहाँ आओ। दोस्तों, उसकी मुलाजमा कमरे में आई तो उन दोनों ने मिलकर घर के सहन में एक बहुत बड़ी कब्र खोदी और उस नौजवान को वहाँ दफन कर दिया। वो दिल ही दिल में बड़ी खुश थी कि मेरी इस आदमी से जान छूट गई है, अब मैं आजाद हूँ। इसके बाद वो तवाइफ अपने बदकारी वाले अड्डे पर चली गई और फिर वही जनाकारी की जिंदगी गुजारने लगी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसको इतनी अच्छी जिंदगी दी। अगर वो चाहती तो गुनाहों से तौबा कर सकती थी, एक नेक और पाक सीरत औरत बन सकती थी, लेकिन उसने अपने हाथों से अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर दिए। उल्टा उसने अपने शोहर को जहर देकर उसका कत्ल कर दिया। वो बदकार तवाइफ तो थी ही, अब वो एक कातिल भी बन चुकी थी। जब सुबह फजर का वक्त हुआ तो मौलवी साहब ने नमाज पढ़ाई और देखा कि उनका शागिर्द आज नमाज पढ़ने नहीं आया, तो वो बड़े परेशान हुए और वो नमाज के बाद सीधा उस नौजवान के घर आए। उसके घर का दरवाजा खटखटाया मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। वो यही सोच रहे थे कि शायद नौजवान सो रहा होगा, मगर उन्हें ये भी अंदाजा था कि मेरा शागिर्द तो कभी नमाज नहीं छोड़ता। दोस्तों, ये सोचकर मौलाना साहब वापस चले गए। जब जोहर का वक्त हुआ तो उन्होंने देखा कि उनका शागिर्द जोहर की नमाज भी पढ़ने नहीं आया। उन्होंने किसी को भेजा मगर उसने भी यही कहा कि अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। दोस्तों, शाम तक यही सिलसिला चलता रहा। ईशा के बाद मौलवी साहब ने सोचा
कि मुझे खुद जाना चाहिए। जब मौलवी साहब गए तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो कोई अंदर से बाहर नहीं आया, मगर अंदर से तोता चीखों पुकार कर रहा था, बचाओ बचाओ। मौलाना साहब समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और दरवाजा तोड़ा गया। दरवाजा तोड़कर सब लोग अंदर दाखिल हुए तो घर खाली था, सवाए इस तोते के और कोई भी नहीं था। वो लोग यही समझ रहे थे कि मियाँ बीवी कहीं घूमने गए हुए हैं। रात को तहज्जुद का वक्त हुआ तो मौलवी साहब को बड़ी बेचैनी महसूस होने लगी। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा शागिर्द बड़ी तकलीफ में है, वो किसी न किसी परेशानी में है। तो मौलवी साहब की बीवी ने कहा, आप परेशान न हो, सो जाएं। दोस्तों, मौलाना साहब दोबारा बिस्तर पर सो गए। मौलाना ने ख्वाब में देखा कि उनका नौजवान शागिर्द रो रहा है और उसकी कनपटियों पर खून पड़ा हुआ है। मौलवी साहब उठे और अपना ख्वाब अपनी बीवी से बयान किया तो उन्होंने कहा, आप बार बार सोच रहे हैं इसलिए आपको ऐसा ख्वाब आया है। मगर दूसरी रात भी मौलवी साहब ने वही ख्वाब देखा और तीसरी रात भी उन्होंने वही ख्वाब देखा कि उनका शागिर्द खून में लथपथ है और रोए जा रहा है। दोस्तों, मौलवी साहब ने उठते ही वजू किया और कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दिया। मौलवी साहब जैसे जैसे कुरानी आयतें पढ़ते जा रहे थे वैसे ऐसे उन पर हर राज खुलता जा रहा था और उनको बताया गया कि घर के सहन में जाकर देखो। अब मौलाना साहब बड़े परेशान हुए कि मुझे घर के सहन का इशारा क्यों मिला है। दोस्तों, मौलवी साहब अपने साथ मोहल्ले के कुछ लोगों को लेकर उस नौजवान के घर चले गए और उनको देखते ही वो तोता फिर से चिल्लाना शुरू हो गया और वो तोता फर्श को देख रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। दोस्तों, जब मोहल्ले वालों ने फर्श को खोदा तो वो तड़प कर रह गए। वो कैसे सोच सकते थे कि उनके मोहल्ले का एक अल्लाह वाला नौजवान उन्हें इस हाल में मिलेगा कि उसको कफन भी नहीं दिया गया था। कौन जालिम है जिसने इसका कत्ल किया है। मगर अल्लाह पाक की कुदरत देखें कि उसकी लाश ऐसे थी जैसे अभी अभी दफन किया गया हो। उसके चेहरे से नूर चमक रहा था। उसको देखते ही मौलवी साहब ने अपना सर पकड़ लिया और नीचे जमीन पर बैठकर मौलवी साहब ने देखा कि उनकी बीवी यहाँ मौजूद नहीं है। उन्होंने सबसे पहले अपने शागिर्द की तदफीन की और उसका नमाज़े जनाजा पढ़ाया। सब लोग इससे परेशान थे कि आखिर इस नौजवान को किसने कत्ल किया है। दोस्तों, मौलाना साहब दोबारा उस नौजवान के घर में आए और अपने शागिर्द को याद करके रोने लगे। मौलवी साहब की दर्द भरी आवाज वहाँ मौजूद तोता बड़ी खामोशी से सुन रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे अब वो जिंदगी में कभी नहीं बोलेगा। मगर अल्लाह पाक ने उस तोते को बोलने की तौफीक अता फरमाई। तो तोता कहने लगा, इस नौजवान की बीवी एक बदकार तवाइफ थी। वो इससे जना करना चाहती थी। वो बदकार औरत यहाँ एक चाल के जरिए आई थी। वो बेस बदल कर यहाँ आई थी और उसने सबको यहाँ बेवकूफ बनाया। उसने इस अल्लाह वाले नौजवान से निकाह किया। जब उसका दिल भर गया तो उसको जहर देकर जान से मार डाला। अब वो दोबारा अपनी बदकारी और जनाकारी के लिए अपने कोठे पर चली गई है। दोस्तों, ये बताकर तोता खामोश हो गया तो मौलाना साहब उस तोते को लेकर अपने घर चले आए और उसको अपने घर पर रख लिया। उसके बाद चंद लोगों के साथ मौलवी साहब उस बदकार तवाइफ के कोठे पर गए। मौलवी साहब गुस्से से चिल्ला रहे थे कि हम इस औरत को कत्ल कर देंगे, इसको बाहर निकालो। मौलवी साहब अंदर नहीं जाना चाहते थे। दोस्तों, मौलवी साहब की आवाज सुनकर उस तवाइफ बदकार औरत की मुलाजमा बाहर रोती हुई आई। उस मुलाजमा ने कहा, क्या आप उस नेक नौजवान के उस्ताद हैं? तो मौलवी साहब कहने लगे, हाँ मैं उसका उस्ताद हूँ, उसका बाप भी हूँ। तुम उस तवाइफ औरत को बाहर बुलाओ जिसने मेरे बेटे का कत्ल किया है। तो मुलाजमा कहने लगी कि उस औरत को उसके किए की सजा इस दुनिया ही में मिल चुकी है। जिस रात वो अपने शोहर को मारकर इस बदकारी के अड्डे पर आई थी वो बड़ी खुश थी। वो तैयार होकर बदकारी के इरादे से बाहर निकल रही थी कि एकदम से उसका जिस्म बदलना शुरू हो गया और देखते ही देखते वो एक औरत से गधी बन गई। ये सुनकर मौलाना बड़े हैरान हुए कि कैसे अल्लाह पाक ने उस औरत को इस दुनिया में ही उसके किए की इबरतनाक सजा दी।